क्या चल रहा है लाइक अभी जो क्वारंटाइन सीजन है उसमें व्हाट आर यू डूइंग, आर यू वर्किंग, कोई सीरीज चल रही है, क्या चल रहा है? I am not working, but yes, I'm doing two projects with a part of military which deals with borders and security and all the transportation. There's a special wing in military. So they're doing a gallery and they're doing a book. So I'm working with them. Right. Which is emphasizing on all 4 different provinces, and that is only for foreigners who come here for training in our colleges, in our military colleges, and foreign delegates. So I'm working with them right now. So that will be. But obviously your traveling and your work is affected, right? Yes, obviously. That is nobody is going anywhere. But I think after this project, I've been lucky to travel, to be allowed to travel in Pakistan, since I'm doing it with military. So, but abroad, yes, that is affected. That is affected. About work, photography is not something I do full time anymore. I did few projects and I did experiments with different camera companies during the lockdown in Ramzan. There was a balcony series which we did as I lived in community living. So हम लोगों ने balcony messages जो होते हैं या रमजान में इफ्तार किस तरह पास हो रही थी उस पर कोई एक सीरीज की थी. फिर एक हमने वर्चुअल कैमरा किया, वो कैनन के साथ भी किया था और एक और सोनी के साथ भी हम लोगों ने किया था कि हाउ कैन यू be in one part and get your shoot done in another by somebody else in another part of the country or the world. So that was via Zoom and laptop. So those were the 2 experiments I did, which were successful. Nice. So, Alia, सबसे पहले तो take us through your professional journey, or I think let me ask you first that how did you discover this photography medium? कैसे discover किया? कोई family में था या are you from an art family, art background? और कैसे discover किया, फिर इसका expression कैसे discover किया और फिर कैसे आपने सोचा कि this can be your medium to express what अच्छा what is happening around? रापिना, कैमरा मेरी एज ए हॉबी आई थिंक फैमिली में बिल्कुल था. माय मदर वाज ए कैलीग्राफर, सो कैमरा तो नहीं बट शी वाज ए पेंटर एंड आर्टिस्ट एंड कलेक्टर्स आइटम वादे उस पे शी वाज एन आर्टिस्ट. आई बिलोंग फ्रॉम ए मिलिट्री फैमिली. माय फादर was in military, so camera was always part of my life. पर मुझे शौक इस तरह, I never thought कि I'll be a photographer, but when we used to move from city to city, I wanted to capture those moments कि अच्छा आप जा रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे, तो एक चीज होनी चाहिए. And then that intrigued me or enticed me or made me see the whole process उस जमाने में. This is like back in 86 and 89. I was really young. I was 5, I think. पूरा रोल डालना और रोल निकालना और फिर वेट करना कि कैसे डेवलप होगा. I learned developing back in 89. We were posted in Quetta and there was only one place, and my uncle was living with us, my chacha, and he was into developing. उनको black and white developing का शौक था. उनको colored भी था, he had a dark room setup. So I learned developing. मुझे बहुत ज्यादा उसमें हुआ. उसके बाद कैमरा वाज ऑलवेज देयर. कभी नहीं गया था, लेकिन वो टूरिस्ट एक सिर्फ मेमोरी कैप्चर करने वाला था. वो आई नेवर हैड एन आई फॉर टूरिस्टिक फोटोग्राफी. आई स्टिल डोंट हैव दैट आई. हाउ इट बिकेम पार्ट ऑफ माय लाइफ वाज व्हेन आई हैड टू मूव अब्रॉड and I wanted to give meaning to my traveling. I've been traveling for a very long time and I've traveled to almost everywhere except for Australia and New Zealand. And I wanted to give meaning to traveling. That's how camera came in. That was in 2008, November 2008.
since then camera and photography is really big part of my life. But it's not पहले शुरू में जरूर था touristic shots हो, खाना हो, culture हो. It's more of a cultural photography which evolved into photographic photography. But cultural थी जिससे शुरू हुआ. पर जब हम बात करते हैं फोटो जर्नलिस्ट की या ऐसे इन्वायरमेंट में जाके काम करने की जो कि बड़ा टफ होता है और जो एक आम इंसान उसको उस तरीके से नहीं उसमें मैनेज कर सकता या उसको एक बिल्कुल डिफरेंट लेंस से देखता है, तो हाउ डिड यू where was that shift? Like you were taking pictures, you were traveling and you were taking pictures of your travels and obviously family, and you learned your developing process, but then how did it shifted into photojournalism? It happened in Sri Lanka. I very clearly remember it. I was traveling to Sri Lanka. I was doing it by myself, and I had this opportunity to travel to Jaffna, which is not Sri Lanka, which was occupied by back then. उस जमाने में तो बहुत ज़्यादा लड़ाई थी. अब तो normal flights आती हैं. And I had an opportunity to travel with a local family to North Jaffna. वहाँ पे जब आप एंटर होते हैं बॉर्डर पे, आपसे पूछ लेते हैं आप कौन सी कंट्री के हैं. आई न्यू सनाली, तो उन्होंने मुझसे इतने क्वेश्चंस नहीं किए नेशनैलिटी पे. दे वेरी नाइस, दे वर वेरी नाइस टू पाकिस्तानी पीपल. लेकिन उन्होंने सेल फोन जो स्मार्टफोन्स कैमरा वाले स्मार्टफोन्स तो नहीं होते थे, नोकिया के फोन आते थे जिनमें कैमरा होता था, वो तक हमसे ले लिए थे. that 6 hours gave me a point to think that 6 घंटे बहुत लंबे थे. That gave me time to think कि somehow if I'm doing it, अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी, how somebody is going to believe my stories or believe what I'm saying. कि being a woman मैं जफना गई, क्योंकि उस वक्त लड़कों के लिए, उस वक्त किसी के लिए भी जफना जाना एक बहुत बड़ी बात थी. और वहाँ पे जो हो रहा था वो सब आके डॉक्यूमेंट करके आके बताना, लिखा हुआ तो कोई भी देख सकता है, तो कैसे किया जाए. That's where it hit me that I need to have a camera and I need to do it. And it's not only the camera which needs to be taken place, it needs the skill set which can show the truth. That is what needs to be done. That's where the shift was. And then there was no looking back. Happened in Sri Lanka twice, Jaffna. Next time I went with the permission of taking the camera in. I gave the exam for international photography, photojournalist, एक आपका वो होता है license. उसका exam दिया मैंने. That happens in US. I took that license. I took my camera in. I took my interpreter in. जो जफना के 2 लोग हैं, एक तमिल है, सनालीज, उन दोनों में वहाँ पे war थी. That was the first conflict zone I covered. Then I went to Burma, then I went to Afghanistan, then I went to Africa. So then there was no looking back. आपकी थोड़ी सी करती है. Then you went to Afghanistan and then Afghanistan के बाद Africa, Somaliland, Rwanda. Recently, that was the last 4. Syria, Kurdistan. North Korea wasn't for photography, but I've been there. But I do have photography from there. But it's not conflict zone, it's not a war zone. You cannot publish those. So, tell us about all this as a woman, especially from Pakistan, because I can't hear you, or you didn't. Ask the question. Okay. So traveling and living under harsh conditions and living in conflict zones and also working there and interacting with people.
as a Pakistani or as a woman, I would say, how did you kind of manage and react? Like, what were your first experiences? Did you think you have had enough already? Did you think of giving up? बहुत मुश्किल है because obviously the conditions are very harsh. That happened on So शुरू में how did you manage? That did happen the first trip in first hour. I decided that this is not my cup of tea. ये मजाक जो है मैं नहीं कर सकती. That did happen, but as a woman, it is easier as a woman because other women are doing it. And I wasn't doing it solo. I was doing it with a partner, and I was doing it with under cover of agency. So I had that security umbrella under me, over me. Sorry. So it was safe, but as a Pakistani, you came and you tell people you're from Pakistan, they're very different reactions. That I had to think कि मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी है या नहीं करनी है. कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मुझे पता था मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी है. I was loved there. I still go there every year, and I love people who I've met on my first trip. I'm their second family. People in Burma, they loved me because I spoke their language. I could relate to them. I could tell कि क्या problems है, क्या बात कर रहे हैं. Afghanistan, I was the most hated one, although they're Muslims, but I don't know. Afghanistan and Pakistan is not on good terms. And I thought that was the one country जहाँ पे मुझे कोई डर नहीं होना चाहिए. But आज the incident कि मेरा आगे से चाय का कप उठा लिया था यूनेस्को हेरिटेज के ऑफिस में, जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं थी, कुछ नहीं थी. We were just covering UNESCO heritage. They learned I'm from Pakistan. First he asked me, are you from Delhi? I said no, I'm from Karachi. तो उसने कहा कराची तो पाकिस्तान में. मैंने कहा हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ. उसने मेरे आगे से चाय का कप उठा लिया and we were a group of 6 people. उससे पहले वो हर चीज हमें उर्दू में बता रहा था और मुझे कह रहा था कि इंग्लिश को ट्रांसलेट कर दो. और उसके बाद उसने sorry I think the network is really bad. So उन्होंने आपको कहा कि आप पाकिस्तानी हैं. मैंने कहा और चाय का कप उठा लिया आपके सामने से. मेरे साथ 6 लोग थे और उनमें से किसी और को उर्दू नहीं आती थी. तो उससे पहले वो हर चीज उर्दू में बता रहा था और मुझे कहता था उनको ट्रांसलेट कर दो, थिंकिंग आई एम एन इंडियन. उसके बाद वो मेरे सवाल का जवाब भी जो है ना वो देना पसंद नहीं कर रहा था और वो अफगानी में कह रहा था. और जो अफगान इंटरप्रेटर हमारे साथ था, हमारा गाइड था, ड्राइवर, उसको कहता था कि अगर दिल चाहे तो उसको बता दो उर्दू में, नहीं तो बाकी सबको अंग्रेजी में बता दो जो अंग्रेज है. So that was one bad experience. So because you have had you have had these experiences first hand. ठीक है, आप वहां थी, आपने ये देखा. और how do you like when you're in these situations and you thought कि आप एक और mindset से गई थी कि अच्छा ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुसलमान हैं और शायद मुझे ज्यादा इतनी टेंशन नहीं होगी, मुझे इतना ज्यादा डरना नहीं पड़ेगा. But then they interacted with you, or the interaction between Afghanis and you was very different from what you thought. But it was not because of who you are, like because of the nationality. एक औरत हो या yeah, so it does bring in the geography and the politics with it. True. Right? So आपको लगता है कि कहीं पे ये जो आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं या जो फोटो जर्नलिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, वो इस चीज में बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं पॉलिटिक्स के चक्कर में, ज्योग्राफी के चक्कर में, इस पॉलिटिक्स के चक्कर में कि उनकी आइडेंटिटी क्या है. क्योंकि आर्टिस्ट तो इज ट्राइंग टू बी ट्रू टू व्हाट ही इज लुकिंग फ्रॉम our area of the world. Let's just say कि आप साउथ एशिया ले लें या इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, yes, वो they get affected. क्योंकि अगर कोई प्रोजेक्ट UN ने देना होगा या रेड क्रॉस ने देना होगा, they would prefer their own people, but उनको एक लैंग्वेज वाला बंदा भी तो चाहिए जो कि क्योंकि if I don't speak certain language and I'm going to cover that area, I cannot put emotions in those pictures. मैंने एक तस्वीर तो खींच ली पर मैं उसको डिपिक्ट नहीं कर सकी क्योंकि मुझे लैंग्वेज ही नहीं पता थी, मुझे वो सिचुएशन ही नहीं समझ आई. वो नॉर्मल तस्वीर भी हो सकती है जिसको मैं बाद में
कुछ मेरी तस्वीरें हैं, they are very they speak volumes and they are very graphic in a way, क्योंकि मैं वहां थी, मुझे लैंग्वेज समझ आ रही थी, मैं वो लैंग्वेज समझती थी, मुझे पता था वो किस चीज की तस्वीरें, so I could put meaning into those फोटोज. अगर मेरी जगह मेरे साथ ही डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स के भी 4 लोग थे. आई हैड माय ओन पार्टनर हु डिडंट नो व्हाट उर्दू इज, व्हाट बर्मीज इज, ही जस्ट स्पोक इंग्लिश. उसको भी बहुत देर बाद मुझे तस्वीरें खींचे, मुझसे बाहर आके अपने होटल के कमरे में आ गए. आई टोल्ड हिम कि वहां क्या हो रहा था, क्या बातें हो रही थी, तस्वीरें क्या है. तो इनको जब एडिट करें या उनको हम लोग यूजुअली होता ही है कि तस्वीरें हम लोग ले रहे होते हैं, द वेरी कैंडिड मिनिमम एडिटिंग अलाउड होती है. और मेरा ज्यादातर काम वहां पे इंस्टेंट जो आप पोलराइड कैमरास कह लो उनसे होता था. तो उसमें एडिटिंग बहुत कम होती है. मतलब यू ट्राई नॉट टू एडिट एंड समटाइम्स दे कैन बी यूज्ड एज प्रूफ. मेरी बहुत सारी तस्वीरें एज ए प्रूफ यूज हुई हैं इन यूएन कोर्ट्स अगेंस्ट द कंट्रीज. तो उसमें आप एडिटिंग करेंगे तो वो फिर आप प्रूफ जाया कर रहे हैं. फोटो जर्नलिज्म में एक ये चीज होती है. तो उसमें unless and until you don't know the exact situation, you don't know what exactly is happening, you cannot put the meaning into the picture, you cannot put emotion into the picture. So एक ये चीज जो हमारे basically you जो मेरे से नहीं, आप जो एरिया से बात कर रही हैं, so we are needed. हमारे अंदर शायद खुद इतना हौसला नहीं है या इतनी हिम्मत नहीं है. हम लोगों ने अभी से सोचा है अफगानिस्तान ऐसा होगा, हम क्यों जाएंगे. मैं लोगों से बात करती हूँ तो कहते हैं कि क्यों गई थी. मतलब दिमाग, अफगानिस्तान pretty modern. Afghanistan is as modern as Karachi or Lahore, to be honest. बर्मा में लोग कहते हैं कि अब तो बहुत but the language go ahead. The language kind of makes you an insider. Yes. Basically. The spy, yes. And it gives you access to, it gives you an access to so many things. Yes. So many situations. Situations and people, they can relate to you. So yeah. So is that why you know 16 languages? You're fluent in 16 languages. Yes, I'm fluent in 12 now, but yes, that's why I know 16 languages. That's the only reason I know 16 languages. And like ये कौन सी ज़बानें हैं जो आप बोल सकती हो? कौन सी हैं? हिंदी है, उर्दू है, भोजपुरी है, राजस्थानी है. इंडियन ज्यादा है क्योंकि मैं इंडिया बहुत घूमी थी और वहां पे तो वो टेस्ट करते हैं बुलवा के. नेपालीज है, सोनालीज है, तमिल आ गई आपकी, बर्मीज है, रोहिंग्या है आपकी, जो है इंग्लिश तो है ही है. उसके बाद आपकी थाई, मैं थाईलैंड में रही हूँ 1 साल. जब मैं म्यांमार वगैरह जाती थी तो मुझे थाई बहुत ज्यादा, इफ आई गो बैक इट विल कम बैक टू मी, आई नो. तो थाई है, कोरियन है, जापानीज है. जापानीज आई कैन नॉट राइट बट आई कैन स्पीक since I've lived there. Wow. तो आई थिंक 12 तो यही हो गई. बाकी आपकी जो है भोजपुरी आ गई, आपकी राजस्थानी आ गई, आपकी इंडियन, अपनी इंडियन महाराष्ट्रन आ गई. मैं इंडिया में लैंग्वेज आपको आना बहुत जरूरी है इफ यू आर गोइंग देयर फॉर मोर देन 2 weeks or few weeks. और जिन कंडीशंस में मैं गई थी तो आई हैड टू प्रिटेंड आई एम एन इंडियन. आई कुडंट से आई वाज इन पाकिस्तानी. तो मैं जिस सूबे में जाती थी, उनके सूबे भी इतने सारे हैं, वो सीखनी पड़ती थी. The country is very diverse. Yes. So India में what were you covering? What was the project that you were working in India? India में I went for a food street, food and clothes. That was cultural photography. Basically, I went for. It was a hardcore cultural experience I wanted to get. And we were doing a project. Somebody in my family was doing a fashion show in Hollywood, themed on Bollywood. So it was hardcore cultural food and clothing style of India. So उसके लिए I spent there 7 months. Right. So like you talked about. Acha. So like you talked about editing. Yes.
तो आई ऑलरेडी हैड दिस क्वेश्चन के एडिटिंग जो है वो कितनी हो सकती है फोटो जर्नलिज्म में, नहीं हो सकती, हल्की सी हो सकती है, परसेंटेज क्या होता है अगर एडिटिंग हो जाए? जिस तरह आपने कहा कि बहुत दफ़ा इमेजेस जो हैं वो एज अ प्रूफ इस्तेमाल होते हैं, तो आप उसमें हल्का सा भी कुछ एडिट नहीं कर सकते। बट अगर उसके अलावा ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर एडिटिंग होती है, कितना परसेंटेज एडिटिंग हो सकती है? और अगर एडिटिंग अलाउड ना हो और जो एजेंसी है या जो फोटोग्राफर है वो उसमें कोई ना कोई ड्रामा डालने के लिए एडिटिंग कर दे, तो उसकी क्या सिचुएशन होती है? लाइक हाउ वर्स कैन गेट एंड फोटोग्राफर से लाइसेंस छीन सकता है, एजेंसी निकाल सकती है, क्या होता है सारा प्रोसेस? अच्छा, जो आपने कहा एडिटिंग, कुछ तस्वीरें होती हैं जिसमें ऐसे रूल आपको एडिटिंग करनी पड़ती है। जैसे एक जो आपने मेरी सबसे पहली तस्वीर थी जिसमें RV3 थी, वो अफगानिस्तान की थी, मिलिट्री, US मिलिट्री की थी एक तस्वीर जो इनवाइट था, सबसे पहली तस्वीर अगर आप देखें तो उसमें एडिटिंग हुई हुई है क्योंकि उसमें एडिटिंग हुई हुई है क्योंकि उसमें हम भी इसमें वो लगे हुए हैं, एंटेनास लगे हुए हैं जो कहा गया था इनको एडिट किया जाए, इनको डिलीट किया जाए। ये मिलिट्री ने कहा था ये डिलीट किया जाए वरना ये कहीं किसी मीडियम पे नहीं यूज हो सकती है, इनको या तो आप अपने पास से डिलीट कर दें या इनको एडिट करें। तो इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको कह दिया जाता है कि अगर ये पब्लिश होंगी तो इनको ये चीजें इनमें एडिट हों। और जो ड्रामा डालने के लिए आपने बात की वो आपको 10% कलर फिक्सिंग या थोड़ा सा टेंशन ग्रैबिंग के लिए 10% का चांस होता है। अब अच्छा, वर्स कम टू वर्स अगर कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें, क्योंकि इट्स नॉट यू नो सेट फोटोग्राफी, आपको नहीं, एक चीज आपकी शूट थोड़ी है, आपकी दिस इज कैंडिड, तो अगर आपकी एडिटिंग हो गई है या आपकी तस्वीर खराब हो गई तरह अपना दे, कोई रूल ऑफ थंब तो नहीं है ना कि आपने 10 तस्वीरें ही देनी है। अगर आपने 10 देनी है तो यू टेक 20-25 एंड यू सबमिट योर बेस्ट 10 ऑफ दैट सेम सिनेरियो। तो अगर एक चीज में आपने तस्वीर खराब हो गई है या ज्यादा एडिट हो गई है या इस काबिल नहीं है, ये होता है कि यू डोंट गेट पेड फॉर दैट वन। मतलब लेकिन 10% आपको चांस मिलता है। कई जगह आपको कहा जाता है कि एडिट करें, बहुत सारी हैं जिसमें कहा जाता है कि ये चीज एडिट करनी पड़ेगी, इसके बगैर ये प्रिंट नहीं हो सकती है, इसके बगैर ये यूज नहीं हो सकती है। जो मैं एक तस्वीर की बात कर रही थी, वो तस्वीर जो जिसमें बताई थी कि वो पूरी उसके पीछे स्टोरी बिल्डिंग थी, जो पूरा विलेज जलाया गया था। तो वो लोग मान नहीं रहे थे कि विलेज जलाया गया है, लेकिन उसपे कहीं हम वॉक करते हुए ह्यूमन बोन्स इतने आराम से नहीं जलती हैं, जिसकी तस्वीर के ऊपर हमारी बहस हुई थी कि लोगों को समझ नहीं आई थी कि मैं तस्वीरें खींच रही थी और बाकी सब पूछ रहे थे कि किस चीज की खींच रहे हो। आप जिस तरह के, तो आपने जिस तरह एग्जांपल दिया, कैन यू हियर मी? या वो थोड़ा लैग आ रहा है, अगर आप रिपीट कर सको तो अच्छा होगा। अच्छा, मैं कह रही थी कि 10% आपको परमिशन होती है, वर्स कम टू वर्स आप वो तस्वीर नहीं सबमिट कराओ। मतलब इसमें ये इट्स नॉट अ फैशन फोटोग्राफी कि आपने स्पेसिफिक पोज लेना ही है, तो इस पे इतना ज्यादा आई डोंट थिंक कोई इशू होता है। मेरे साथ तो कभी भी नहीं हुआ, ज्यादा हुआ तो यही हुआ कि तस्वीर नहीं दी। और कई जगहों पे ये होता है कि आपको एडिट करना मस्ट होता है, मतलब वो आपको कहते हैं कि ये चीज हम नहीं पे एडिट करना मस्ट होता है। सही। तो जिस तरह आप कह रही हो कि एडिटिंग जो हमारी टाइटल पे तस्वीर है उसके अंदर एडिटिंग उन्होंने कहा था कि ये वो एडिटेड है, वो एडिट हुआ है। सो आपको लगता है कि स्टोरी बिल्डिंग तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है और वो फोटो जर्नलिस्ट ऑलरेडी कर रहे होते हैं बहुत सारे तरीकों से, लैंग्वेज समझ के, जिस तरह आपने कहा है, कैंडिड मोमेंट्स को करके, वो आपने कहा है। लेकिन स्टोरी बिल्डिंग इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको लगता है कि एडिटिंग टू द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग अ सर्टेन एजेंडा, डू यू थिंक दैट एग्जिस्ट्स? Then that's biasness. That's not capturing the truth, which is I held camera. I don't do that.
Even if I'm asked to do that, I won't do that. I won't take that project if I'm asked to be biased or built up to a certain agenda. That happened to us once. I didn't take that project. I left halfway through. Right. So it's very direct. Like, yeah. They tell you कि जहाँ political agendas आ जाते हैं, बहुत मेन एग्जाम्पल है क्योंकि आजकल बहुत करंट इशू है, पाकिस्तान में नहीं डिस्कस हो रहा बट वर्ल्ड वाइड है, बर्मा का है, आपका एक वियतनाम का एक इशू है, डॉक्टर की बरसी थी कल, उनको मारा था पॉलिटिकल रॉयट्स में, डॉक्टर फेम को HRW से बहुत काम कर रहा है, तो वो पाकिस्तान में इतना नहीं उस पर बात होती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड आप बात कर रहे हो, जिन फोरम्स में मैं रहती हूँ या जिन साथ मैं काम कर रही हूँ उन फोरम्स पे, बर्मा सबको पता है पाकिस्तान में, आई थिंक दैट इज वन इशू जो ऑन गोइंग है, सबको पता है, उसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी अयान सुकी आई थिंक बैक इन फरवरी में व्हेन शी गॉट इलेक्टेड, तो उसने अपना बड़ा वन साइडेड स्पीच की थी जिसपे मैंने खुद भी बहुत ज्यादा पॉइंट रेज किए थे और बहुत सारे लोगों ने पॉइंट रेज किए थे कि शी इज बीइंग पेड। तो मैंने से कहा था मैं इससे 2 दफा मिली हुई हूँ और दोनों दफा इसको नहीं समझ आ रही थी इसने क्या बोलना है, इससे मुसलमानों के राइट पे बोलना है या मुसलमानों के अगेंस्ट बोलना है, तो उसका नोबेल प्राइज किसी काम का नहीं है। तो उस प्रोजेक्ट पे आई सेड नो एंड आई अपोलोजाइज टू दैट न्यूज़पेपर एंड आई नो समबडी एल्स ही स्टिल इन बर्मा, उसको बर्मा से अब डिपोर्ट कर रहे हैं for the same reason, saying no. He's 67, he has given his 40 years of life to Burma. He's Australian and he has no idea where to go now. So we're working together, I know him, and I was talking to him day before yesterday. I think I mentioned him too. And I was talking to you. So I'm translating his book for him. On the plight of Rohingyas. Yeah, right. We talked. Yeah. So what do you feel when you see कि इतने लोग हैं जो फोटो जर्नलिस्ट इतने मुश्किल से जाकर वक्त गुजारते हैं और हम तक फुटेज भी लाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी लाते हैं, सच भी लाते हैं, ये भी बताते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, बट दे काइंड ऑफ डोंट, they're not celebrated. वो हम तक नहीं पहुंचते, आम लोगों को उनका पता नहीं होता, और इतने फोटो जर्नलिस्ट हैं जो वॉर्स में जाके, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जाके, इवन कि अपनी सिटीज में भी जब इतने मुश्किल हालात होते हैं, कोई प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, कुछ हो रहे होते हैं, तो उसमें भी लोगों की जानें चली जाती हैं, फोटो जर्नलिस्ट की या आर्टिस्ट की, लेकिन वो सेलिब्रेट नहीं किए जाते. हाउ डू यू फील अबाउट दिस? दैट्स सैड एंड आयरॉनिक, क्योंकि इट्स सेफ्टी इशू. मैं कभी भी उस पर नहीं जाऊंगी. थ्रेट आपको अपना होता है. आप मेरे साथ, आई हैड माई फैमिली सपोर्ट फ्रॉम विद मी, लेकिन एक थ्रेट पे तो आप हर वक्त होते हैं ना कि यार अगर मैं बाहर आ गई या मेरा नाम पता चल गया कि इसने रोहिंग्या की ये स्टोरी कवर करके वाईसी को दी थी जिसपे इतने लोग जो है एक्सपोज हुए थे, और फिर सबको पता चल जाए मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान में मेरे इतने बहन भाई हैं, तो वाई टू पुट देम एट रिस्क. लोग मैरिड होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो वाई टू पुट देम ऑन रिस्क. एक रीजन ये भी होता है. दूसरा, इट्स अ थैंकलेस जॉब. नोबडी इज थैंकफुल कि अच्छा आपने ये किया. आप पाकिस्तान के अपना कोई अखबार उठा के देख लो, यहाँ पे जो यू आर वेरी राइट, कोई लोगों को ये पता होगा ये आर्टिकल किसने लिखा है, न्यूज किसने कवर किया है, ये नहीं पता होगा कि तस्वीरें किसने खींची है जो आग लगी हुई थी उसके अंदर से. बिल्कुल. इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब. उसमें तो कोई थ्रेट नहीं है आपको, क्योंकि हम फोटो जर्नलिज्म को पाकिस्तान में उस तरह देखते ही नहीं है जितना दुनिया में शायद देखा जाता है. और एनीथिंग फिलैंथ्रोपिस्ट इज वेरी थैंकलेस. आप एक अच्छी फैशन शूट कर लो, यू विल बी सेलिब्रेटेड लाइक एनीथिंग. हर एक को आपसे तस्वीर खिंचानी होगी. आप किसी एक अपनी लोकल अभी कोई वीडियो फुटेज देखता, मुझे कोई इस तरह का याद नहीं आ रहा. अभी कराची में बारिश हुई थी, तो आई थिंक एक बिल्डिंग की स्क्रीन गिरी थी, किस लोगों ने उसको बहुत कवर किया था, लेकिन आपको नाम नहीं बता सकते किसने किया था. किसी से पूछो, हर अखबार में आई थी वो तस्वीर, वो न्यूज पे आई थी, लेकिन किसी को नहीं पता होगा. और एक बंदा जहाँ टाइलें गिर रही है उसके नीचे खड़ा है, उसने अपनी लाइफ रिस्क की है. सो इट्स अ थैंकलेस जॉब. दैट्स व्हाट आई थिंक. जिसे वो लोग कर सकते हैं. एंड यू सेड कि
You go ahead. You said philanthropy. So, do you think the photojournalist को philanthropy के साथ मिलाना एक interesting term है? बिल्कुल, I think it's philanthropy. If you talk to any photojournalist who in this field for 40-45 years, will call it philanthropy. He will call himself a philanthropist. Right. Because आप invest भी खुद कर रहे होते हो, आप you are helping world. So it is philanthropy. So it's a very thankless job. बिल्कुल बिल्कुल. All the images that we are surrounded by, I think उसमें से 90% जो हम देखते हैं न्यूज पे, न्यूज़पेपर में, मीडिया पे, इवन सोशल मीडिया पे, we don't really know where it's coming from, किसने किस तरह किया है, क्या हुआ है, क्या बैक स्टोरी है, we don't really know it. तो उसको सेलिब्रेट करना तो बहुत मतलब अगला स्टेप हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल वो, और अभी तक हम शायद वहां तक पहुंचे नहीं. So हाँ, so like you said कि आप एक अगर आपकी तस्वीर ठीक नहीं आई है, एडिटिंग है या कुछ है, तो आप उसकी 10 तस्वीरें, 25 तस्वीरें, 20 तस्वीरें आप खींच सकते हो. लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर एक फोटो जर्नलिस्ट एक जगह पर खड़ा है और वो एक अपने सामने एक सिनेरियो देख रहा है और उसकी तस्वीर बना रहा है और वो 20 तस्वीरें बनाते हैं और वो सबमिट करता है और उसमें से न्यूज़पेपर या एजेंसी जो है वो कोई एक तस्वीर ही सिलेक्ट करती है आगे देने के लिए, तो वो उस एक इमेज में क्या ऐसी बात होती है जो बाकी इमेजेस में नहीं होती? अच्छा, और वो 20 कभी भी सबमिट नहीं करता. सॉरी, मैं आपकी बात काटती हूँ. वो 20 अपने लिए खींचते हैं क्योंकि वो सिनेरियो दोबारा रिपीट नहीं होगा. अगर एक बंदे को गोली मारी जा रही है तो 20 वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो वो 20 अपने लिए करता है कि इस 20 में से 8 तो सही आएंगी, 8 में से 5 इस काबिल होंगी सबमिट की जाए, उस 5 में से शायद 2 वो होंगी. वो 2 में जो चीज देखी जाती है, अब डिपेंड करता है. आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, देयर वाज ए फोटोग्राफ जो कि इसको फिल्टर्स भी मिला था और उसने खुदकुशी कर ली थी उस फोटोग्राफर ने, कि वो चील अफ्रीका में एक बंदा देख के गई थी. That's why I call this philanthropy as well, क्योंकि वो उसको इमोशनली इतना हिट किया था और वो तस्वीर उस सब उसके ज़हन में सिर्फ तस्वीर थी, लेकिन बाद में उसको वो ये बात उसका कॉन्शियसनेस को रहने नहीं दिया कि इस आदमी ने मुझे क्यों, मैंने उस बच्चे को बचा सकता था, मैंने क्यों नहीं बचाया अपनी तस्वीर के चक्कर में, कि ही किल्ड हिमसेल्फ. तो ये बहुत ज्यादा देखा जाता है. मैंने खुद अपने साथ के लोगों को देखा है करते हुए कि कवर किया, सब कुछ किया, बाद में हुआ कि यार हम कैमरे के पीछे थे, हम we could have done something more, we could have done something else. वो PTSD में चले जाते हैं. So what you're saying, I will come back to the कि एक तस्वीर में क्या देखते हैं. I was coming to the point, if that's what you are asking. वो एक तस्वीर में ये चीज देखते हैं कि what is it saying. आपको बगैर वर्ड्स के अपने सामने 8 तस्वीरें रखो या 10 रखो, कोई एक तस्वीर बगैर वर्ड्स के पूरी स्टोरी बता दे कि वो क्या रहा है. ये उमेर भाई कह रहे हैं कि केविन कार्टर, जी बिल्कुल सही, केविन कार्टर था. हाँ. तो वो एक तस्वीर आपको पूरी स्टोरी सुना दे बगैर कहे, मतलब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन ना पढ़नी पड़े 10 वर्ड्स की. या एक तस्वीर दूसरी है जो आपने मेरी डाली है, 2 लड़कियां खड़ी हुई हैं जिसको मैं फियर कहती हूँ, जिनकी आंखों से पता चलता है कि कुछ है, और उसके पीछे स्टोरी ये है कि उन्होंने जो दोनों, एक शायद 8 साल की थी और एक 5 साल की थी, और एक जगह है अफगानिस्तान में मजार शरीफ, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, थोड़ा साउथ करके है. वहां पे इन दोनों बच्चियों ने अपने बाप को तालिबान को मारते देखा था. So when we got out of van, we were with foreigners and we had a local guy who looked like who was a local, so they couldn't tell कि वो तालिबान क्या है. तो ये उनका पहला रिएक्शन था उस आदमी को देख के जो मैंने तस्वीर खींची थी. So I call it fear. It was known as fear wherever it was displayed. It was published in New York Times. कि वो डर था, वो उनका पहला रिएक्शन था अंग्रेजों को देख के या आउटसाइडर्स को अपने गांव में देख के. तो वो एक तस्वीर इसलिए पब्लिश हुई थी, हालांकि उन बच्चों की या उस ऑर्फनेज की बहुत सारी तस्वीरें हैं कि the one photo. So taking this point forward,
आप कैसे 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 समझा सकती हो हमें कि अगर कोई तस्वीर जिस तरह की तस्वीर हमने शेयर की और जो एक तस्वीर आप भी कह रही हो, बता रही हो कि उसके लिए लैंग्वेज, तो यू सेड इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट मेक्स यू एन इनसाइडर, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, तस्वीर से पहले क्या हुआ, तस्वीर के बाद क्या हुआ, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, किस किस्म की टेंशन है। बट जब तस्वीर कहीं डिस्प्ले होती है या तस्वीर कहीं जाती है तो उसके साथ जो हम लफ्ज जोड़ते हैं कैप्शन की फॉर्म में, वो कभी कितना इम्पोर्टेंट होता है और कभी कभी कितना इम्पोर्टेंट नहीं होता, या कहीं पे बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं होती और कहीं पे यू हैव टू एक्सप्लेन द बैक स्टोरी। आई थिंक जब आप एक एग्जीबिशन सर्टन में जा रहे हो या पब्लिश कर रहे हो तो बैक स्टोरी तो ऑलरेडी बिल्टअप हुई भी होती है, पता होता है कि कहाँ की तस्वीर है, क्यों है, एग्जैक्टली क्या कैप्शन मेरे लिए बहुत पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे अगर में लोग तस्वीर खींच लेते हैं, कैप्शन बाद में सोचते हैं, मेरे दिमाग में कैप्शन पहले होता है, तस्वीर बाद में आती है। कैप्शन मेरे लिए पर्सनली बहुत जरूरी है और जहां भी मैंने देखा है बैक स्टोरी होगी तो आप उसको वॉर फोटोग्राफी कहेंगे या फोटो जर्नलिज्म कहेंगे। अगर मैं एक तस्वीरें जेनोसाइड की डिस्प्ले कर रही हूँ और बगैर उसके के जेनोसाइड है तो वो ना बैक स्टोरी होगी, जेनोसाइड की तस्वीरें कहाँ से आएंगी। जो रवांडा जेनोसाइड मेरा लास्ट लेटेस्ट आई थिंक 2017 में पब्लिश हुआ है, तो वो जेनोसाइड था, उस पर रिट्रीट था, तो एक बैक स्टोरी तो ऑलरेडी वहां पे हो जाती है इस फील्ड में। कैप्शंस मेरे लिए जरूरी होते हैं। बाकी लोग आई हैड अ टीम ऑफ 3 अदर पीपल, उनमें से एक के लिए उसमें पोएम्स बहुत जरूरी होती थी कैप्शन की जगह, एक वॉज इंडिफरेंट, उसको था कि हो ना हो, द राइटर इज गोइंग टू राइट इट हिमसेल्फ, बट फॉर मी कैप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो दूसरा था उसके लिए it had to be poems. The third one was very indifferent. Okay, he didn't care. So I have one question. Sure. Around this. Sure. Okay, when you're thinking of a caption, in what language do you think of a caption? Because you know so many languages. Don't ask me that. Any. For the first is Persian. First is Persian. Second, since I've lived in US for 15-16 years, I used to even dream in English. उर्दू आती नहीं थी दिमाग में। Wow. Because I was married to an American जिसको उर्दू नहीं आती थी, so all my in-laws कोई भी उर्दू नहीं बोलता था, मेरी अपनी फैमिली पाकिस्तान में थी, तो I used to dream in English too. उर्दू जब मैं पाकिस्तान आती थी तो काफी टाइम लगता था मुझे, मेरे अपने घर वाले जब मेरे अपने नाम से बुलाते थे, थोड़ा एक्सेंट डिफरेंट ऑब्वियस थी, तो मुझे 5 मिनट तो लगते हो, 5 मिनट चलो ज्यादा एग्जैजरेशन हो गई, 20 सेकेंड लगते होंगे एक रिस्पॉन्ड करने में कि ये मेरा नाम था। तो फर्स्ट कैप्शन इज ऑलवेज फर्स्ट इन पर्शियन, देन जो जहाँ की लैंग्वेज है उसके जो प्रोवर्ब्स हैं आई रीड अ लॉट, तो उनके ऊपर जो बुक्स लिखी हुई है उसमें से कोई चीज, देन इंग्लिश। उर्दू भी है, अगर उर्दू समझ आती हो या उर्दू जा रही है उसके साथ, ये भी तो डिपेंड कर रहा है पब्लिश कहाँ हो रही है। अब अगर वो अमेरिका में पब्लिश हुए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुए हैं, उर्दू में कैप्शन या उस पर एक लाइन लिखते किसी को समझ नहीं आएगी। बर्मा में फिर भी 70% लोग उर्दू बोल लेते हैं तो आ जाती है, अफगानिस्तान में भी बोल लेते हैं तो आ जाती थी, सोमालीलैंड में उनकी अपनी लैंग्वेज है, सोमालियन, अफ्रीका में सवालीज है, तो उसमें डिपेंड करता है पब्लिश कहाँ हो रही है। तो इट हैज नथिंग टू डू विद इमेज, इट टू डू वेयर इट इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड एट। Right, the audience. Yes. या जो भी लोग, yes, audience, I mean, yeah, let's put it that way. तो गोइंग बैक टू द पॉइंट जिसमें आप बता रही थी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं व्हेन दे आर इन अ सर्टेन सेटिंग, एंड व्हेन दे कम बैक फ्रॉम दिस सेटिंग दे फील वेरी डिप्रेस्ड या फील डाउन, एंड दे कैन नॉट प्रोसेस कि वो किस सिचुएशन से निकल के आए हैं। सो हाउ डू यू सी दिस, how does this affect your mental health? How does this affect your personal life, your relationships, going to a conflict zone and looking at such scenarios day, night, living under the threat of your life, and also knowing that you might not be celebrated, nobody in your country or nobody in your
surroundings really know what hard job you're doing. And coming back to your home and spending some time with your family, तो उसको किस तरह से वो shift जो होता है, how do you manage that, how does that affect your mental health, और फिर से उन projects को लेना, फिर से उस zone में वापस जाना, how do you mentally process that? मुझसे पूछें, to be honest, I think this is for the faint-hearted. लोग कहते हैं this is not for the faint-hearted, this is for the very strong-willed and strong-headed people. I think this is for the faint-hearted who have nothing to lose, who don't fear anything, जिनके पास, जिनका दिल किसी चीज में नहीं होता कि I have nothing to lose. That those are the only people who can survive in this field. Otherwise, it takes toll on your health, a lot of toll on your relationships, every relationship. Let it be your parents, let it be your siblings, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर सकते उस लेवल पे वापस आने के बाद, क्योंकि आप इतना कुछ देख के आ रहे होते हैं कि आप जब उसको निरेट भी करने लगते हैं तो आपको लोग जो है ना, लोग आपसे घबराने लगते हैं कि आप इतने डिप्रेसिंग सोल, आप हो ना हो डिप्रेसिंग सोल, बट यू स्टार्ट साउंडिंग लाइक अ डिप्रेसिंग सोल. मैं नेपाल में जो सब, इट वाज अ फोटोग्राफी प्रोजेक्ट, इट वाजंट फोटो जर्नलिज्म और फिल्म फोटोग्राफी. नेपाल में घाट है जहाँ पे ये लाशें जलाते हैं हिंदू, उसको कवर करना था हम लोगों को एक नेपलीज मैगजीन के लिए. उसके बाद आई टर्न्ड इनटू अ वेजिटेरियन फॉर अ गुड 1 year, क्योंकि वो जो स्मेल थी, इट किल्ड मी. So that took a lot of effect on my physical health, but I lost a lot of weight. बाकी सबका मुझे नहीं पता, मैं अपनी एग्जांपल्स दे सकती हूँ. जो वॉर जोन से आने के बाद जब आप वहाँ पे सुनते हैं, हम लोग अफगानिस्तान में तो चले, इतना नहीं आप लोगों से मैंने बात की थी क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा डिफरेंट काइंड का था. इट वाज मोर ऑफ ए PR थिंग एंड आई वाजंट अलाउड टू टॉक टू पीपल सिंस वी रियलाइज्ड के दे डोंट लाइक पाकिस्तानी. बर्मा में मेरा काम ज्यादा बात करना था. When people used to say कि मलेशिया में अगर आप जा रही हैं वापस तो ये हमारे खत लोगों को दे देना, या अच्छा कराची से हो तो कराची में एक बर्मा कॉलोनी है जो मुझे नहीं पता था, बीइंग अ कराची मुझे बात हो जाती, ये हमारे खत हमारे घर वालों को दे देना बिकॉज दे थिंक आई एम डेड. तो जब मैं वो ला के मैंने यहाँ पे दिए थे, यू हैव नो आइडिया द रिएक्शन आई गॉट. इट गेव मी लाइफ, इट गेव मी सेकंड लाइफ, कि somebody thinking that children are dead, their grandchildren are dead, and knowing all of a sudden out of nowhere that they are alive, the joy it brought to them was priceless. It's giving me goosebumps सुन के. लेकिन वो मेरे दोस्तों को या मेरे घर वालों को बात समझ नहीं आती थी कि why would that make me happy when they are strangers and they are strangers. I'm just passing a letter or being a messenger, and why would that give me a peaceful light sleep? So you cannot connect with other people. You cannot connect with normal people. You cannot go out and have that. I wouldn't enjoy a normal socializing जो उस एज में आपकी 20s में 30s में होता है कि आप बाहर जाएंगे, आप वापस अपने मुल्क जा रहे हैं इतने सालों बाद या इतने दिनों बाद. So you'll hang out with your friends. So I start losing friends. क्योंकि मुझे लगता था this is waste of time. I can do something constructive with this time rather than going out for coffee. मतलब why coffee is so important in our life. मिलना है तो 5 मिनट मिल के we can do so much. You know, we can send them donations, we can send them care packages. और कुछ भी नहीं, एक छोटी सी चीज जो अफगानिस्तान में मैंने ऑर्फनेजेस में ज्यादा काम किया है या वुमेन रिहैब्स में ज्यादा काम किया है, उनको अगर हम लोग पाकिस्तान से या अमेरिका से या थाईलैंड से या किसी और मुल्क से हैंडमेड कार्ड भी एक भेज दें, जो आई थिंक अभी किसी ने पाकिस्तान में भी कहा था, इंडस हॉस्पिटल से एक डॉक्टर ने, कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको अगर आप एक वो हैंडमेड आप अपने बच्चों का कार्ड भी भिजवा देंगे ना तो उनके अंदर हिम्मत पैदा करता है. एंड आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड एंड नॉट नाउ, इयर्स अगो, बैक इन 2011, बैक इन 2010, कि उनके लिए यहाँ से जब कार्ड्स भी आप लेके जाएं स्ट्रेंजर्स के कि यू नो वी आर योर स्ट्रेंथ एंड वी आर प्रेइंग फॉर यू, दैट गिव्स देम द स्माइल. उन्होंने 4 दिन से खाना नहीं खाया होगा पर उस तरह खड़े होके अपने लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे जैसे पता नहीं कितनी ताकत है उनके पास. वेपनलेस लोग हैं बेचारे, उनके सब कुछ बंद है, वो रिफ्यूजी कैंप्स में है, लेकिन they will have another life. That's how it works. Then you start connecting to people at another level. आपको रिफॉर्म हो जाता है, आपकी अपनी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं.
And does that majorly point out the materialistic stuff also? Yes, kind of. You lost interest in all the you try spending on necessities. Alia? Sorry, I think something happened in my net. Welcome back. Thank you. No problem. Okay, so where were we? You were asking me about materialism. Yes, you start spending on necessities and needs rather than wants. मैं शायद कैमरे पे ज्यादा स्पेंड कर लूंगी, 10 मेमोरी कार्ड लूंगी क्योंकि आई एम कमिंग आउट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट जोन. मुझे गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं वो डेटा या वो चीजें बाहर लेके आऊं, तो मुझे बैकअप चाहिए होगा. या थोड़े कपड़ों पे इस तरह के स्टडी हो कि अगर इफ आई एम बीइंग अटैक्ड तो आई हैव अ बुलेट प्रूफ जैकेट और आई हैव अ फायर प्रूफ जैकेट रादर देन बाइंग अ अरमानी बैग. सो यस, दैट चेंजेस टू. कहीं ना कहीं you start living, you try thinking living in a minimalist form. You're going in with a backpack and coming out with backpack, and then that becomes part of your life. Yeah, it becomes your lifestyle. Yeah. So working in this environment and working in conflict zones, does that change your perspective towards politics? And does that change your perspective towards Western viewpoints? Because when you're going and you're taking pictures and you're trying to bring the truth, but you're also in a very political scenario, because if you're in a conflict zone, it is already a political situation set by the politics between the countries and everything, or between different races or different people from different faiths. So does that change your perspective when you your It personal, does. I mean, yes, the politics first, but you learn over the time of period that all the religions basically are built on one thing, that is humanity. We have different way of thanking God. We believe in different kind of gods, but the base of every religion is humanity and peace. चाहे इस्लाम हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे हिंदुइज्म हो, सबका जो बेसिक रूट है ना, दैट इज ह्यूमैनिटी एंड पीस, एंड वी मोल्ड इट. I don't know if I should be saying this online or not. And we molded as per our convenience. Those are my 2 cents. Yeah. And politically, yes, it affects you. You kind of get indifferent, and I became indifferent. I don't cast vote anymore. I don't cast. I have voted in 2 countries. I don't, because in the end, it's all going to be the same. And I've seen it myself with Turkish Prime Minister. मैं अपने मुल्क को कहूँ या अमेरिका को कहूँ या किसी और बड़े मुल्क को कहूँ. I've even seen him with Turkish Prime Minister. He came to Burma when I was there. उसको भी वही पेन ड्राइव्स मिली थी जो हमें मिली थी, जो कहीं पब्लिश नहीं हुई, और हमारी वाली पब्लिश हो गई, हालांकि he was a Prime Minister. And what I was just a ह्यूमन और मुस्लिम फोटोग्राफर. मेरे अपने आप किसी भी कोई भी स्टोरी ले जाओ जो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग हो किसी भी टीवी चैनल पे पाकिस्तान में, दे आर नॉट गोइंग टू इनकरेज यू. हाँ, आप कोई ऐसी ले जाओ, बॉलीवुड स्टोरी ले जाओ या हॉलीवुड स्टोरी ले जाओ या अपने पाकिस्तान की आर्टिस्ट की स्टोरी ले जाओ कि 2 में झगड़ा हुआ और डोमेस्टिक अब्यूज था, वो फौरन पब्लिश हो जाएगी. लेकिन इस तरह की कोई चीज नहीं होगी. That's another phase, the place where I will, call it philanthropy. Okay, nobody values it. Yeah. Nobody wants to get in between, because if you take Africa,
So nobody is going to stand for them except for OIC, क्योंकि nobody is going to get any gains from it. If you take Myanmar, उसके बाद इतनी resources हैं कि everybody wants to be on their good side. Let it be China, let it be India. India और China में वैसे ही उसमें एक rift है म्यांमार को लेके, वो दोनों pipeline ले रहे हैं. Pakistan is with China. मतलब it's, yes, you get to see all the country wise वो जो political एक web है जिसकी लोग बात करते हैं, वो आप बहुत करीब से देख लेते हैं. I think किसी ने कहा था मुझसे. So आज sorry, आप बोलो. नहीं, I will connect with you again because Insta has a live session limitation और 1 घंटा हमें पूरा होने वाला है, so I don't want to cut you बीच में. No problem. तो मुझे आपकी आवाज आ रही है, तो I think थोड़ी देर में वीडियो आ जाएगी. Sure. आपको मेरी आवाज मुझे बिल्कुल आ रही है. वो ट्रेडमार्क और तस्वीरों पे जो आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है. So Lux Capio means capturing the truth. It's French. Lux means light, and Capio means capturing. So it's capturing the light of truth, which is what Lux Capio has been doing, capturing the truth wherever we go. A website or Facebook page इसलिए बना था क्योंकि people wanted to see your work, and you cannot send your portfolios to so many agencies. उस पे तो ये आपने एक link send कर दिया and people know you are there just to show your existence. It's a registered firm. तो जितनी हमारी तस्वीरें होती हैं जो पब्लिश भी होती हैं जो सेल आउट भी होती हैं, उस जमाने में Getty Images used to buy pictures, वो under the name of Lux Capio or under the logo of Lux Capio होती थी. That's how Lux Capio came into being. It's still there. It's not gone anywhere. It's still there. So it's important that you have your portfolio somewhere. Yes. If you want to work professionally with agencies. Online yes. portfolio. Yes. Yes. Yeah. So somebody has asked you a question. My question was, how do you control your emotions taking a photo of a situation you feel you can interfere with the spot and save it? I think the same emotional situation like we talked about Carter's situation. Okay. He so was a... How do you... I think for me, he was a teacher. He taught. जब उसकी suicidal उसके बाद कि how you satisfy yourself is कि मैं अगर तस्वीर सही जगह लेके सही point पे लेके सही जगह पहुंचा दूंगा तो जो है that is doing a justice to that person. At that point, if you have that mental fraternity and if you are in that thought, so you're doing the right thing. So you can control your emotions. After you're done, I mean, there have been moments where when I was done interviewing people or where I was done taking photos, I went to those people and I spoke to them and I told them कि मैंने ये किया है. And I apologize and they're like, नहीं, हमें सिर्फ हमारी बात बाहर पहुंचानी है. हमें सिर्फ दुनिया को दिखाना है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि दुनिया कुछ और पोर्ट्रे करी है कि हमारे साथ हो क्या रहा है और असल में कुछ और हो रहा है. और वाकई में ऐसे ही है. कोई भी असल चीज नहीं पता चल रही थी. 3-4 मुल्क हैं, किसी को नहीं पता अभी भी सोमालीलैंड में क्या हो रहा है लड़कियों के साथ, या अफ्रीका में क्या कुछ नहीं हो रहा. लोगों को ये बात नहीं पता. जफना को बहुत कम लोगों को पता होता है. वेरी फ्यू पीपल एंड यू वर वन ऑफ देम. आई वाज सरप्राइज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन जफना. Because I've been to Sri Lanka and one of my seniors in BNU was from Jaffna. He was 1 year senior, so we knew him. But when I was traveling to Sri Lanka, he said that he helped me a lot, because that was my first solo travel. Okay. So he said कि I will help you ये सब कुछ करके. So I said I want to meet you also because I'll meet you and I'll personally thank you and ये वो. Then he told me he's in Jaffna. So that's how it it started कि अच्छा क्या है कैसे है ये वो सब कुछ. So now so that's how I know it. So sorry, I said Jaffna. Now it's open. Now they have commercial flights, tourist flights. But when I'm talking about 2006, 2007. तब कुछ भी नहीं था. तब तो it was an occupied area. It was like occupied Kashmir. Somebody asked me somewhere, why don't I write a book and to get noticed? So I already have written 2, and I'm already working on the 3rd one. उसका जवाब. I think Amna asked that question.
Acha, I think I missed that. That was like long question. ago. Acha. So, I have not seen that book. So, No, I don't think is it's that- available in Pakistan. But the third Oh, one would acha, be. acha, The theek hai. third So- one would be on. The third one, the one I'm working on right now, that will be available in Pakistan. Right. So, somebody's asking your favorite country and city. That's a tough one. I think my favorite city and country. If it's for holidays, I would go to Sri Lanka. And city, I lived most of my life in, not most, but the maximum time of my life in St. Louis and Sims, Montana, US. So yes, Sims has to be it. Sims has to be my favorite city. And so, ये मेरा आखिरी सवाल होगा क्योंकि मैंने बहुत सवाल कर लिए लेकिन जब आप कहीं जाते हो किसी असाइनमेंट के लिए तो आप इतनी कंट्रीज देखते हो इतनी जगहों पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे यू फेल्ट सो ओवरवेल्म्ड बाय द कल्चर उस वक्त तो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में तो ये होता है कि कल्चर सारा खत्म हो रहा होता है आर्ट खत्म हो रहा होता है पीपल आर सो डाउन एंड वो हालात ही नहीं होते कि यू कैन थिंक अबाउट kind of archiving or restoring. Very small island in Myanmar or Burma in their conflict zone next to Sitwi. It's called Texila-Fera. You wouldn't know it. It's like a very, very, very small island. But it's called Texila-Fera and we have Texila in Pakistan and it has 100 that Shoedagons. Shoedagon Fera is their mosque or temple, what you call. So they are still intact. I think this is the same place that you mentioned to me, but I didn't know that it was, I didn't know about it. Okay. Before. So, and they still have female monks. I've not seen that anywhere else. I've been to many Buddhist countries. What I mentioned to you was Lumbini, Nepal, where Buddha was born. The Buddha tree where Buddha was born. So yes, that area has, but that's not a conflict zone. Since you're asking specifically about conflict zone, that's Texila-Fera. It's a very small island. उसके बारे में पढ़ा भी शायद नहीं होगा. कुछ भी नहीं है. वो रास्ते में आता है. आप ferry ride लेते हो वहाँ से. To go to another Buddhist site, a Buddhist city, because there are Muslim cities and Buddhist cities. So, but yes, everything was intact. उनका हर चीज, उनका culture, उनका. That was the only place where I saw female monks. That was the only place where they still have their traditional breakfast. That's the only place where there's no car, no motorbike, so zero pollution. And how do you eat is you fish and you eat. Wow. Or you take the rice out of paddy fields and you eat. There are no shops, there's nothing. Wow. Nothing. So that is one place. Alia, we have had such an interesting conversation with you. Amna has sent a question. How do you cope with the depression after working in a conflict zone? How do you absorb all that you have seen? That must be tough. How do I cope up with the depression? That's, you come back and you reset. Yes, I've paid a price. I've paid a huge price. I went through a divorce. So it's not easy to cope up. It's not easy to absorb you. It becomes part of you. So that's how you observe it. It becomes part of you and your life. It starts reflecting in your life. It starts reflecting. It also becomes strength somewhere. Yeah, it starts reflecting in your attitude somewhere. Yes, it is tough, and I mean, God has been kind, alhamdulillah. Other than divorce, I don't think I ever had other major setback other than this. I've lost children, but yes, those are the two major setbacks.
But Amna, alhamdulillah, they become part of you. You cannot, either you do it or you don't. And if you're doing it, do it with all your heart, or you just don't. So there are only two ways. You become. I have become a person who has no shade of gray. It's either white or black. In anything and everything, it's either yes or no. There's no middle way. So that becomes tough. Yeah. Alia, it has been such a honor to have you over, because the pleasure is all mine. You have taken out time for us, and I would want to have another session with you anytime you want, because I think we have only covered half of what you have done. And फिर से वही बात आ जाती है कि अपने फोटो जर्नलिस्ट को और अपने फोटोग्राफर्स को, अपने आर्टिस्ट को सेलिब्रेट करना, स्पेशली जो इतनी मुश्किल से हमारे लिए एक डॉक्यूमेंटेशन लेके आते हैं, और हम उस डॉक्यूमेंटेशन से हर वक्त सराउंडेड रहते हैं, पर हम कभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते कि ये कौन है और ये कैसे इतनी मुश्किल से अपनी लाइफ को भी स्टेक पे लगा के तो हमारे लिए ये सच लेके आया है. सो आई थिंक लेट्स डू अनदर सेशन टॉकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट्स. कभी हम करेंगे इंशाल्लाह. Inshallah. Thank you for taking out time. Thank you for giving me a chance. And thank you, Amna. Thank you, Umair Bhai. I think everybody, thank you, whoever joined in. Kisi ka question reh gaya ho, so my own Insta hand is Bohemian with Camera. That's my personal wo. So you can always send me questions, and I'm there to answer. Whoever wants to get into this field, or whoever wants to do it, I have any questions, more than welcome. हाँ, कोई भी किसी को भी फोटो जर्नलिज्म या कॉन्फ्लिक्ट जोन, or they can get in touch with you and you can ask me. So for sure. किसी ने पूरी कन्वर्सेशन सुननी होगी तो YouTube पे भी है, IGTV पे है. You can send in your questions for Alia. और तस्वीर कर, we will love to get back to you. अभी के लिए let's keep other stuff for the next session. Okay. क्योंकि मैंने बहुत सवाल किए. Thank you for your time. बहुत intense conversation है. Thank you so much for your time. Thank you, Alia. Thank you for joining. Thank you for taking out time.